Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 8 and our chapter name is Winds, Storms and Cyclone. In previous class we understand this chapter so much example of how air excrete pressure and moving air is called a wind and air excrete pressure, how it has helped us to us. First we take a different type of example. For example, air pressure help us to flying a kite, riding a bicycle, and okay, and banners and flag fluttering, ये सब चीजें जो होंगी because of air excrete pressure. Air क्या करती है? Excrete करती है pressure को. Okay, then after we discuss two activity 8.2 and activity 8.3. Here we discuss कि air higher pressure से lower pressure की ओर move करती है. Air moves toward a higher pressure to lower pressure. Okay, and next activity we discuss in this activity 8.4. Can you blow and lift? Hold a strip of paper. First in this activity, first we take this type of a strip. Look at this. Okay, and it's a 20 centimeter long and 3 centimeter wide. Between your thumb and forefinger as shown figure 8.5, now blow over the paper. आपको just like that, you take a paper strip. Okay, ये पेपर स्ट्रिप है यहाँ से यहाँ तक और आपको अपने थंब और फिंगर की हेल्प से उसको होल्ड करना है. Okay, and just like this picture, you take it. Okay, and पहली thing that the strip will be lifted up. पहली कह रही कि जो strip है वो कैसे ऊपर की तरफ कैसे आएगी. Bujo thinks that the strip will bend down. जो बुझो है वो कह रहे कि क्या होता है, what do you think will happen the paper. अब ये जो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है ये अपने माउथ के स्लाइटली नीचे इस पेपर स्ट्रिप को प्लेस करते हैं एंड एयर को ब्लो करते हैं. ओके, तो एयर ब्लो होने के कारण ये जो पेपर स्ट्रिप है अपने आप ही ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो let us try to understand the observation 8.2, 8.3 and 8.4 where the observation along the lines you thought you get the feeling that increased wind speed is accompanied by the reduced air pressure. Okay, in this activity के अंदर हम क्या observe करेंगे. First हमने जो भी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर विड्थ की एक पेपर स्ट्रिप ले ली है. होल्ड इट टाइटली इन योर हैंड एंड ब्लो एयर ऑन द टॉप ऑफ द पेपर. अब इस पेपर के ऊपर की तरफ अपने को यहाँ पर एयर को ब्लो करना है. ओके, एंड देन व्हाट हैपन, we will observe that the paper lift up and when we blow air, जब आप या मैं जो भी इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं वो जब इस एयर को ब्लो करेंगे तब हम देखते हैं कि जो जैसे ही हम ब्लो करते हैं पेपर ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाता है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है. हाउ दिस हैपन, क्या होता है कि भाई व्हेन वी ब्लो द एयर द इंक्रीज द स्पीड ऑफ एयर. जैसे मैं यहाँ से ये जो बॉय है ये यहाँ से एयर को ब्लो कर रहा है तो यहाँ की जो एयर है, इधर की जो एयर है वो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और वो यहाँ से आगे की तरफ मूव अप हो जाएगी, जिससे यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम. सो हाई एयर प्रेशर कहाँ होगा, इस साइड में. तो हाई एयर प्रेशर से लोअर एयर प्रेशर की तरफ जो है एयर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी. आई रिपीट, व्हेन वी ब्लो द एयर वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ एयर. Okay, and increased speed reduces the pressure of air. As the pressure above the paper reduces, the paper lift up, and this activity show increase in wind speed reduces the air pressure. अगर wind की speed तेज हो जाती है तो क्या happen होता है, उस जगह पर air pressure जो है वो reduce हो जाता है, decrease हो जाता है. I think it's clear to you. Okay. Now
When you blow into the mouth of bottle, the air near the same, यही एक्टिविटी हमने एक्टिविटी 8.2 में की थी कि जब हम बॉटल के माउथ में एयर को ब्लो कर रहे हैं तो वहां पर भी हायर स्पीड हो गया था. दे डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ. द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट. और ये जो होता है तो उससे क्या होता है, बॉटल के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जिससे वो जो बॉटल में जो हमने एयर को करके रखा था वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट, in activity 8.3 we saw that when you blow the between the balloon और आप बैलून के बीच में ब्लो करते हैं then what happen, move toward each other. दोनों बैलून एक दूसरे की तरफ या toward मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं. how could this happen? This could happen if the air pressure of between the balloon were somehow reduce the pressure outside the balloon. बाहर से जो बैलून की साइड से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा. would then push them toward each other. तो ये दोनों बैलून को एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं. ओके, और लास्ट एक्टिविटी जो हमने आज डिस्कस की है, वी ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप, इट वेंट अपवर्ड. अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप. We see that the increased wind strip is needed and accompanied by the reduced airflow. मतलब कि इसमें क्या होगा कि मेन चीज क्या हो रही है, मेन चीज क्या फॉलो हो रही है कि भाई विंड की स्पीड ज्यादा हुई तो एयर प्रेशर वहां पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ओके, Can you imagine what would happen if high speed wind blow over the roof? आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आपकी रूफ पे एयर प्रेशर या विंड बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाए तो व्हाट विल हैपन, रूफ वर वीक, जो आपकी छत है वो वीक होगी. तो मे बी दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब कई बार बहुत तेज आंधी होती है तो जो कच्ची छत होती है या जो शटर से बनी हुई छत होती है वो उनके साथ में ब्लोन अवे हो जाती है. कैसे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर से आंधी या स्टॉर्म इतना तेजी से निकलता है कि वहां पर एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है. तो हाई प्रेशर से एयर जो है लो प्रेशर की तरफ मूव होती है, तो इस वजह से जो आपकी रूफ है वो ब्लोन अवे हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है. इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद यू. आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई चीज रखी है और वो साथ में एयर के साथ में ब्लो अप हो गई आपकी छत पे, तो वो सब चीजों को आप डिस्कस कर सकते हो कि वो सब इसी वजह से हुई. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस. हम ये डिस्कस करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ विंड प्रोड्यूस कैसे होती है, एंड हाउ दे ब्रिंग रेन, और उसके साथ में रेन कैसे आ जाती है, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, और कई बार वो इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो जाती है विंड. ओके, यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव इट इज कॉल्ड अ विंड. हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं पहले ही कि व्हेन एयर इज मूव्ड इट इज कॉल्ड अ विंड. Air move from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. देखिए हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी, 8.2, 8.3 और 8.4. तीनों एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के बाद में हमारे को ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि ऑलवेज हाई एयर प्रेशर वाले रीजन से एयर जो होगी मूव होगी या विंड जो होगी मूव होगी किस तरफ, लो एयर प्रेशर की तरफ. ओके, the greater the difference in pressure, the faster the air moves. जो difference है air pressure का, भाई एक तरफ higher है और एक तरफ lower है. ओके, तो ये जो डिफरेंस है वही एयर की स्पीड को इंक्रीज करता है. अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है देन स्पीड हाई होगी, डिफरेंस बहुत कम है देन स्पीड कम होगी. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर. लेकिन ये जो प्रेशर, भाई अभी तो हमने कह दिया कि हमने एयर को ब्लो किया, पेपर स्ट्रिप के ऊपर से ब्लो किया, बॉटल के अंदर ब्लो किया, बट ये तो आर्टिफिशियल टेक्निक्स है ना, भाई हम खुद कर रहे हैं. नेचर में ये चीजें कैसे हैपन होती हैं, वी डिस्कस हियर. इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. एयर एक्सपेंड होती है हीटिंग पे. बिफोर दैट वी सॉ ए वीडियो, वी अंडरस्टूड वेरी वेल रिगार्डिंग दिस. Okay, now next one is air expand on heating. Okay, take a boiling tube and stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape to make it tight. आपको क्या करना है, एक boiling tube लेनी है, just like that. Okay, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. उस ट्यूब को आपको tightly उस boiling tube के अंदर इस तरीके से रख देना है. And you can use a tape to make it tight. Pour some hot water in a beaker. Insert the boiling tube with the balloon in the hot water. Observe for 2 and 3 minutes for any change in shape of the balloon.
take the tube out and let it cool down to the room temperature. आप ऐसा कीजिए कि इसको 2-3 मिनट तक आपको ऐसा रखना है और इसको कूल डाउन होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए. Take some ice cold water in another beaker and place the tube within the balloon in cold water 2 and 3 minutes. Observe the change in the shape of the balloon. आपने 3 चीजें ली हैं बेटा. एक में आपने क्या किया कि बैलून को टाइटली फिक्स कर दिया है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, कुछ भी यहाँ पर नहीं किया. यहाँ पर हॉट वाटर इंक्लूड कर दिया और थर्ड वन में क्या किया हमने, आइस कोल्ड वाटर लिया है. ओके अब तीनों का कंपैरिजन करेंगे. व्हाट विल वी ऑब्जर्व, थिंक एंड ट्राई टू आंसर. व्हाट मेक द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर. आप हॉट वाटर वाले में बैलून को देख पा रहे हो कि उसके अंदर कुछ एयर फिल हो गई है. Okay, why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? और यही जो बैलून है और भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जब उसको हमने आइस क्यूब वाले वाटर में रख दिया है. Can be inferred from the first observation that air expand on heating. क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कि when the tube is placed in a hot water, air present in the tube get heated. जो एयर प्रेजेंट थी ना उस ट्यूब के अंदर वो क्या हो गई, हीटेड हो गई, ऑन हीटिंग. ठीक है, तो ऑन हीटिंग में क्या होता है, एयर एक्सपेंड. एक्सपेंड का मतलब होता है बेटा फैलना. ठीक है, एयर एक्सपेंड एंड फिल अप द बैलून. जो एयर थी अंदर की वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई, फैलना शुरू हुई, तो फैलेगी तो बैलून में स्पेस है तो वहां पर स्पेस कवर करेगी. ओके और another one, which tube we place in ice cold water, the air cool down. वहां पर उस ट्यूब के अंदर जो एयर थी वो कैसी हो गई, आइस के अंदर रखा है तो कूल डाउन ही होगी. कूल डाउन होने के कारण क्या हुआ, डिक्रीजेस इन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो गई उसकी, डिक्रीज हो गई. Okay, so that is the result in the inflammation of balloon. This activity prove the air expand on heating. Heating करते हैं तो जो एयर है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और कूलिंग होगी तो एयर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. ओके आप बैलून की पोजीशन देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई थिंक नॉट अ हार्ड एक्टिविटी, वेरी इजी एक्टिविटी दिस वन. Okay, the next activity is very interesting. This will make you understand more about the hot air. Next activity भी यही आपको एक्सपेंड बता रही है कि when we heated the air, जो heated air है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है एंड लाइटर इन वेट होती है. फर्स्ट में तो हमें ये समझ में आया कि वो एक्सपेंड होती है. ओके सेकेंड एक्टिविटी में हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन एयर हीटेड इट्स अ लाइट इन वेट. वो कैसी हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाएगी. ओके एक्टिविटी 8.6, take 2 paper bags of empty paper cup of the same size, hang the 2 bags in. आपको सेम साइज के 2 बैग लेने हैं. इज इट क्लियर? एम्प्टी पेपर कैप लेने सेम साइज के और हैंग ऑन 2 पेपर. हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली. देखिए कोई भी चीज, बर्नर, कैंडल, कुछ भी इस तरीके का या कोई भी हीटेड चीज को हम यूज कर रहे हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. द इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 एंड्स और मेटल और वुडन स्टिक. और उसकी जो ऊपर की साइड है ना वहां पर हम क्या करें, उसको किसी स्टिक की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से उनको बैलेंस कर ले. बैलेंस कैसे करें, फर्स्ट पिक्चर देखो, बोथ आर इक्वल. ओके बोथ पेपर बैग्स आर इन स्ट्रेट लाइन. दोनों कैसे हो, स्ट्रेट लाइन में हो. ओके ऑन द 2 एंड ऑफ द मेटल और आप मे बी मेटल स्टिक ले सकते हो, वुडन स्टिक ले सकते हो, इट्स योर चॉइस. एंड टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. और बिल्कुल बीच में एक थ्रेड को टाई कर दे. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस. अब उस स्टिक को उस थ्रेड को होल्ड करके दोनों को बैलेंस करें. पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग. अब एक बैग के नीचे की तरफ क्या करें, कैंडल को बर्न करना स्टार्ट कर दे. ओके एज शोन इन द फिगर में जैसे बताया हुआ है. भाई दोनों बैग के नीचे कैंडल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट बैग के नीचे कैंडल ब्लो किया हुआ है. ओके and observe what happened. Why is the balance of the bag distributed? अभी पहले तो देखो हमने क्या किया था, बिल्कुल थ्रेड को बीच में से पकड़ रहे थे तो दोनों बैग कैसे थे, बिल्कुल सेम इन पोजीशन पे, दोनों इक्वल इन वेट थे. ठीक है, और जैसे ही हमने कैंडल को रख के उस पेपर बैग को बर्न करने की कोशिश की, उसके नीचे फ्लेम करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया. भाई एक ऊपर और एक नीचे की तरफ आ गया. ठीक है, डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप. ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो कैंडल के ऊपर जो एयर है ना वो वार्म होकर ऊपर की तरफ
rises up हो रही है, pushes the bag, और जो वहां उसके कैंडल के आसपास की एयर जो rises up हो रही है वो उसके ऊपर जो पेपर बैग रखा है ना उसको पुश कर रही है. Okay, the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air the lighter than the cold air? और इसी एक्टिविटी से हमें समझ में आया, इस डिस्टर्बेंस से हमें समझ में क्या आया, जो वार्म एयर है is lighter in weight comparison to cold air. Can you now explain why smoke always rises up? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी चीज जब बर्न होती है तो उस टाइम पे जब उससे स्मोक रिलीज होता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? Okay, so I think you understand very well why the smoke always rises up, because जो smoke है वो warm होगा. ओके और warm जो है वो warm air जो है वो या warm चीज जो है वो warm smoke lighter in weight होगा. That's why it is always rises up. Okay, and also it is important to remember that on heating the air expand and occupy more space. जो air है वो expand होती है, उसको ज्यादा space चाहिए जब हम उसको heat करते हैं. When the same thing occupy more space it become lighter, और ज्यादा space लेने के कारण ये क्या हो जाती है, lighter in weight हो जाती है. The warm air is therefore lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up. यही एक रीजन है जिसके कारण वो जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ उठता है. Okay. Next, in nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lowered. The cold air from the surrounding areas rushes into fills its place. This setups convection in air as you learned in chapter 4. आपने chapter 4 में convection read किया था, तो ये वही चीज है कि कैसे जो एयर warm air molecules हैं अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करते हैं. हमने कन्वेक्शन में ये देखा था, वो अपनी हीट एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज, हमें इस एक्टिविटी से क्या समझ में आ गया, जब लाइटेड कैंडल को हमने पेपर बैग के नीचे प्लेस किया देन क्या हुआ, हीट से एयर जो प्रेजेंट थी पेपर बैग के नीचे की तरफ वो हॉट एयर लाइटर इन वेट हुई, राइजेस अप हुई. देन जो हॉट एयर है वो पुश करती है बैग को और बैग ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है. विच मूव आउट टाइटलिंग द स्टिक, थोड़ा सा जो स्टिक है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, मींस डिस्टर्ब हो जाती है. ये एक्टिविटी क्या शो करती है, हॉट एयर इज लाइटर एंड राइजेस अप. ओके, इससे बिफोर जो एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी, दिस एक्टिविटी, व्हाट इज दिस एक्टिविटी शोज, दिस एक्टिविटी शोज एंड प्रूव दैट एयर एक्सपेंड ऑन heating. I think you all understand very well both the activity. Okay, next point is wind current are generated due to an uneven heating on the earth. This topic we discuss in next class. Okay.